Assalamu alaikum, everyone. Hope all of you are doing great. So today we are with the fifth session, right? Or I hope that uh, all of you are somehow learning something or the other. Your responses on the assessment is really overwhelming. We really appreciate that you are taking time out of your domestic chores because there is no school, or if there is school, there is little school, and you are doing the assessments. That's very great. So, today we are going to discuss a very important topic of education, of teaching. And in this topic, we will also discuss a challenge that all of us are facing as teacher, as educator. So I hope that uh, you will find something uh, new or something to learn today as well. So if I ask you, what is the biggest challenge that we as educator face, right? And what is the biggest challenge that students do have to face these days? This is the introduction of AI. What is AI? Artificial intelligence. There was a time when it was it was available to few people, but now it's available to everyone. Your mobiles have this. So, as a teacher, you assign some task to your student, and what happens? You get excellent uh, response from your students. But when you discuss regarding the assignment with your students, you find that their understanding of the topic is not similar to the assignment tasks that they have submitted. यानी जो असाइनमेंट टास्क उन्होंने दिया था उसके साथ उसकी कोई मुताबिकत जो है वो नहीं हो रही. तो आज हम preparing students for an AI driven learning, right? So basically our topic is Bloom's taxonomy. Why Bloom taxonomy matters in today's classroom, right? Some of you are already familiar with Bloom's taxonomy, and it may be new for some others. So today, I'm sure that by the end of this session, each one of you will be very well aware of what Bloom taxonomy is. Bloom taxonomy kya hai, right? So let's discuss a case study. A teacher, ninth grade teacher, social study teacher, is established school, in a well-established school. आप समझे कि आपका अपना स्कूल है, TSS का कोई campus है. He is committed to completing the syllabus on time, ensuring students achieve high marks in board examination. His lesson mainly consists of lectures, note taking, and end of chapter question. यानी lecture देते हैं साहब और student notes लेते हैं और चैप्टर के एंड के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं. दिस इज हाउ द प्रिपरेशन गोज. और इसी से स्टूडेंट जो हैं वो लर्न करते हैं. वो क्या करते हैं, डेफिनेशंस जो हैं वो मेमोराइज कर लेते हैं, डेट्स कब कौन क्या हुआ, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो उसको याद कर लेते हैं और फिर लिख लेते हैं, राइट? सो ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी अगर किया जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये काम एक लंबे अरसे तक होता रहा. हमारी जो हाई पोजीशंस आती थी उनके उनके अक्सर लोग जो होते थे वो इन्हीं चीज़ों से होते थे. वो एक साहब थे, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने MA इंग्लिश में ही टॉप्ड, और उनका हिसाब ये था कि वो
लिखते थे कि शेक्सपियर वाज अ प्ले राइट, कॉमा आना है, फुल स्टॉप आना है, कॉलन आना है, क्या आना है, दिस इज हाउ ही वुड डू। लेकिन जब उनको एग्जाम के बाद उनको अपना एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ी तो वो ढूंढते फिरते थे, यार जरा इसको लिख दो, एप्लीकेशन नहीं मुझे आती। तो ये जो मेमोराइजेशन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना, या इवन वर्ड फॉर वर्ड, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते थे जो दो दो तीन तीन पेजेस की जो एसेज एक जमाने में होते थे, जो वर्ड फॉर वर्ड याद कर लेते थे, बल्कि आज भी उनमें से कुछ को कहूँ तो वो सुना देंगे। सो ये हमारा, हम सबका ये एक तरीका रहा, क्योंकि इसी तरीके के मुताबिक हम सब ने एजुकेशन ली और इसी को किया। ये तो बड़ी बात की चीजें हमने जब जानी कि कैसे इसको असल टीचिंग क्या होती है। However, over the past year, Mr. Ahmed notices a major change. Many students are submitting assignments that are usually well written, languages sophisticated, and answers are perfectly organized. Obviously, when you have uh, copied some material from somewhere, तो हर चीज perfect होनी है, right? लेकिन जब आप ऐसे स्टूडेंट से सवाल करेंगे किसी चीज के बारे में कि हाउ दिस हैपेंड, राइट, तो उनको जवाब देने में एक तो यह कि हमारे यहाँ वैसे ही कम्युनिकेशन जो है इज अ पुअर थिंग। हमारे बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेशन जो है उसको नहीं लर्न करते, नहीं उस असातिज़ा उनको इतना क्वेश्चन करते, उनसे नहीं डिस्कशन होती, तो इस वजह से उनकी कम्युनिकेशन वैसे ही पुअर होती है। बट इवन इफ सम ऑफ देम कैन कम्युनिकेट, बट if they simply copy something that is excellent, sophisticated, but they cannot reproduce it as they have copied it, और वो problem face करते हैं। Some students openly admit that they use AI tools such as ChatGPT to generate their assignment। तो ये एक बहुत है। इवन हमारे यहाँ जो रिसर्च बेस पे काम हो रहा है उसमें इसका चैट जीपीटी या दूसरे जो हैं वो जेमिनाई या दूसरे और एआई सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल होता है। अदर्स कॉपीड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग इट, गए गूगल किया, जो जवाब आया उसको वहां से कॉपी किया और दे दिया। तो ये हाल इस वक्त भी हमारे बहुत सी स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में जो है वो है। तो इसको कैसे हम यानी टैकल कर सकते हैं एज टीचर। अब टीचर ने एक डिस्कशन की, शुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त तमाम टीचर्स को दरपेश होता है कि ये डिस्कशन हो रही है कि क्या आइंदा आने वाले वक्तों में ह्यूमन टीचर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, एआई से। डिस्पाइट हैविंग एक्सेस टू अबंडेंट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मोस्ट स्टूडेंट्स कैनॉट, यानी बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल होने के बाद एआई क्या रिप्लेस कर देगा। इसका जवाब है कि जो स्टूडेंट इससे कुछ हासिल करते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। डिफेंड देयर ओपिनियंस विद एविडेंस, यानी जो उनकी राय होती है उसके लिए उनके पास कोई दलील नहीं होती। एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, किसी बात के हक या मुखालफत में कुछ नहीं कह सकते। एवेल्युएट एथिकल कंसर्न, किसी भी चीज को कितना उन्होंने लेना है, उसको सही सही तरह साइट करना है या नहीं। हमारे यहाँ पूरे के पूरे यानी एमफिल और पीएचडी जो है वो कॉपी मटेरियल से हो जाते हैं। हालांकि अगर एक खास तरीके से उसको किया जाए, उसको समरी बना के किया जाए और उसका जो रेफरेंस है वो कर दिया जाए, यानी तो वो आपका अपना वर्क हो सकता है। लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। प्रपोज बैलेंस सॉल्यूशंस, तो वो कोई बैलेंस सॉल्यूशन किसी बात का नहीं दे सकते। रिस्पॉन्ड कॉन्फिडेंटली टू अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, यानी उनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं होती कि किसी बात के मुखालफत में वो बात कर सकें। और इसकी वजह यह है कि एआई से इंफॉर्मेशन की हुई उसको इस्तेमाल करना स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है। दे सिंपली रिपीट इंफॉर्मेशन दे फाउंड ऑनलाइन, वो तो बस वो जो ऑनलाइन मिली चैट जीपीटी में रखी, ठीक है, उसके बाद जो जवाब आया उसको एज इट इज।
आपको पता है पिछले दिनों अखबारात में कुछ आर्टिकल्स आते रहे हैं जिनमें चैट जीपीटी वो नीचे एक देती है कि डू यू नीड समथिंग मोर, और इस तरह का कोई ना कोई वो एक फ्रेज देती है। वो तक अखबार में आ गया, और डॉन जैसे अखबार में जिसके बारे में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, बाकियों की तो बात ही क्या करनी, right? At the same time, the school introduces new competency-based curriculum emphasizing critical thinking, creativity, collaboration, communication and problem solving. तो स्कूल ने ये सारे काम जो थे वो किए कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक प्रोजेक्ट बेस्ड हो, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल कैसे करना है, नई चीज के बारे में कैसे सोचना है, मिल के काम करना है, अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। सो टीचर्स आर encouraged to move beyond memorization and prepare students for a world where information is available instantly. अब इन तमाम चीजें के लिए टीचर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे? टीचर खुद सवाल, पहले बात को समझने की सलाहियत रखता हो, फिर बात के ऊपर सवाल बनाने की सलाहियत रखता हो, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो जो स्टूडेंट के पास है उसके ऊपर वो काम कर सकता है। The academic coordinator reviews Mr. Ahmed's lesson plan and discover that nearly all classroom activities focus on. अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जब हुआ तो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो कि ट्रेंड था, उसने जब इन साहिब का देखा, लेसन प्लान देखा, तो उसमें क्या था? रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, ये याद करो व्हेन अकबर केम टू पावर, हाउ ओल्ड वाज ही? डिफाइनिंग टर्म, अब आता है डिफाइन। मैं आपको ये बताऊं, मैं खुद पेपर बनाता हूं, और अगर मैं डिफाइन के अलावा लिख दूं तो यकीन करें, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता उस क्लास को, वो एक यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, तो मुझे लिखना पड़ता है डिफाइन, क्योंकि जरा सा मैं ट्विस्ट किया तो इसका क्या मतलब होगा? आंसर जीरो। और आंसर जीरो आया अगर आप एक यूनिवर्सिटी के पेपर में ये काम कर दें, तो उसके बाद तो वो फिर आपको बुला लेंगे सीक्रेसी वाले एग्जामिनेशन वाले कि जी आपके सवाल बनाए हुए के जवाब स्टूडेंट ने दिए नहीं, क्यों नहीं दिए, जरा साबित तो करें, राइट? लिस्टिंग पॉइंट्स, या पॉइंट लिस्ट कर दो, 14 नकात जो है वो बयान कर दो, बल्कि हर सवाल के 14 नकात होते हैं। एंड आई टेल यू कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो उनको टीचर ही सिखाते हैं कि आपने जो पॉइंट्स लेने हैं उनके पहले इनिशियल पहला पहला लेटर ले ले, उससे कोई एक्रोनिम बना ले, कोई ऐसा वर्ड बना ले कि उस वर्ड को याद रखें जो आपको उसमें आप उसको याद करके लिखते रहें, वो वर्ड याद आएगा, उसके बाद आप कुछ ना कुछ लिख लेंगे। जो एग्जामिनर होगा पेपर चेक करना हो ना, उसने भी कौन सा वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना है। तो ये हकीकत करें, जानिए कि ये ऐसे होता है। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मेरे सामने बेशुमार असातिज़ा और बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं जिनको इसी तरीके से पढ़ाया गया। रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट बुक आंसर, सो इवन हमारे बोर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक सामने रख के आंसर जो होते हैं उनको वर्ड फॉर वर्ड वो चेक करते हैं कि क्या आंसर टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। जरा सा आगे पीछे कोई कर जाए तो उसका मतलब यह है कि वो जवाब जो है वो आपका दुरुस्त नहीं होगा, आपको तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो जो टीचर है उसकी अपनी लर्निंग भी जो है वो एक खास लेवल तक है, क्योंकि वो उसने इस काबिल अपने आप को किया ही नहीं कि वो चीजों को जान सके। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम के ऊपर टीचर की अंडरस्टैंडिंग, अभी वो हमारे यहाँ इंग्लिश के लिए ट्रेनिंग हो रही थी और टीचर्स ने बायकॉट कर दिया। स्टूडेंट रेयरली एंगेज इन हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है? अगर हायर ऑर्डर है तो फिर लोअर ऑर्डर भी होगा, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वर्कशॉप्स ऑन ब्लूम टेक्सोनॉमी, अब इसके ऊपर लगाई उन्होंने अरेंज किया जैसे हम ये कर रहे हैं। The coordinator conducts a workshop on Bloom taxonomy, showing teachers that in the age of AI, remembering information is no, sorry,
नो लॉन्गर इनफ, राइट। यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको याद हो तो ये किसी काम की नहीं है, इसीलिए वो भूल जाती है। आप देखेंगे जिन लोगों ने कोई डिग्रीज की हुई है, वो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा ऐसे वेगली चीजों को याद कर लेंगे, किसी चीज को वो एनालिटिकली नहीं देख सकते। और हमारे यहाँ, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम किसी भी बात के, किसी भी शख्स की कही हुई बात को चैलेंज नहीं करते। Since student can assess facts within seconds, schools must focus on helping them understand information, apply information in different contexts, analyze different parts of the information, evaluate so how far it is good or bad, and create knowledge, right? And as a result, if you look at this, knowledge is basically not information. नॉलेज बिगेट्स नॉलेज, यानी इल्म जो है वो इल्म को पैदा करता है कब? जब आप इस तमाम प्रोसेस से गुजरे हुए हो, यानी आपने चीज को समझा और उसको अप्लाई करके देखा है, उसको एनालाइज किया है। ये साइंसेस के बारे में नहीं है, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में इक्वल है। सो Mr. Ahmed redesigns his lessons. Instead of asking, define artificial intelligence, वो क्या करते हैं? How now he asks, explain how AI is changing education. अब अगर इसके ऊपर करना पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा। अप्लाई AI टू सॉल्व अ लोकल कम्युनिटी प्रॉब्लम, जैसे हमने कुछ ट्रैफिक के ऊपर, कुछ वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, कोई इस तरह की चीजों के ऊपर देखा है, तो AI आपको क्या सोल्यूशन देती है? डू दे फिट इनटू योर प्रॉब्लम्स? कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स थ्रू द हेल्प ऑफ AI? राइट, कंपेयर ह्यूमन इंटेलिजेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी क्या वो कौन सा पॉइंट है जहां AI इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस क्यों डिफरेंट है AI से? और क्या, क्योंकि ये सवालात जो हैं वो अब बड़े चैलेंजिंग सवाल हो गए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू बी डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स। एनालाइज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन AI। अगर आप बहुत ज्यादा AI को यूज करेंगे तो आप उसी के होके रह जाएंगे। whenever you get a thing, तो आप उसको AI से हल हो गई, बस अब करो। मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ, बहुत से मेरे पास आते हैं, तो मुझे पता होता है ये AI से लिखा हो, क्योंकि इतना फ्लॉलेस इंग्लिश, जैसे कि इसकी केस स्टडी के शुरू में हमने पढ़ा, ये मुमकिन नहीं है कि फ्लॉलेस इंग्लिश लिख जाए। आप उस शख्स को देखते हैं जिसने लिख के दी है, और आप उस चीज को देखते हैं और आपको पता लगता है कि ये इस बंदे की काविश नहीं है। एवेल्युएट वेदर AI शुड बी अलाउड इन एग्जामिनेशन। ये एक बहुत बड़ा सवाल उभरता आ रहा है कि हमें इस बात को एवेल्युएट करना है कि AI को हम इम्तहानों में यूज करने की इजाजत दे सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे इसके नाकदीन ये कह सकते हैं जी AI से ही जब काम लेना है तो व्हाई नॉट टू यूज इट, हम उसको AI को प्रॉपरली यूज करना क्या सके। लेकिन AI जरा सा सिस्टम डाउन हो तो आप कहाँ के रह गए। डिजाइन स्कूल गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अब अपने सिलेबस में AI को, इस वक्त हम अपने हेड ऑफिस में बहुत अपने सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं AI के हवाले से, और इसको पॉजिटिवली अपने जो हमारा करिकुलम है इसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें और किस हद तक वी कैन अलाउ। और ये चीजें हमें अपने टीचर्स को भी, अब आइंदा इंशाल्लाह ताला जो ट्रेनिंग होगी उसमें उसमें हम इस हवाले से भी देखेंगे कि AI को कैसे यूज किया जा सकता है। हम टीचर्स को क्या गाइडलाइन दे सकते हैं कि वो AI को यूज करके स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली AI से इंट्रोड्यूस करके अपने अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। सो चेंजिंग रोल ऑफ टीचर।
Within a few months, classroom discussion became more engaging. Students began questioning information rather than accepting it blindly. They cite evidence, challenge ideas respectfully, and produce original project instead of copied assignment. So ये तब होगा जब टीचर्स एफर्ट करेंगे. जब टीचर्स एफर्ट नहीं करेंगे, और टीचर्स कब एफर्ट करेंगे? जब कोऑर्डिनेटर्स और जब प्रिंसिपल्स इस बात को समझ लेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम में किस चीज को इंट्रोड्यूस करना है. सो स्टूडेंट्स स्टिल यूज एआई टूल्स, but they use them as learning assistants rather than as replacement for thinking. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है असिस्टेंट का, और दूसरा ये है कि वो आप ही का रोल अपना लें. यानी द एआई बिकम्स टीचर, ये थिंकिंग उसका रोल हो जाएगा. ठीक है. सो मिस्टर अहमद ने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या करना है. ठीक है. तो उसके नतीजे में लर्नर्स जो थे वो ऐसे डेवलप हुए कि जो क्रिटिकली थिंक कर सकते थे, प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते थे, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, और क्रिएट इनोवेटिव इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट को सिखाना बहुत जरूरी है. मैं सोच रहा हूँ कि ड्यूरिंग द सेशन हमको एक आध दिन फोर्टनाइटली कोई स्टूडेंट्स के साथ भी सेशन करें, जहां उनके आजकल के जो इसी तरह के डिसीजन उन्होंने अपने करियर के बारे में कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कशन की जाए. सो why should student why were students unable to explain assessments that they had submitted? Which level of Bloom's taxonomy dominated Mr. Ahmed's classroom before the training? Why is memorization become less valuable in the age of AI? How does Bloom's taxonomy help teacher design AI resistant assessment? Which classroom activities in this case promoted higher order thinking? How can AI be used responsibly without reducing students' thinking skills? If you teach your own subject, how would you redesign one lesson using all 6 levels of Bloom's taxonomy? So आपको ये पता लग गया कि Bloom's taxonomy के 6 level है. Which changes should school make to prepare students for future careers where AI is widely available? ये स्टूडेंट्स का, ये टीचर्स का, स्कूल का काम है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल के लिए तैयार करें. So reflective activity, think about one assignment you recently gave your student. Ask yourself, could AI complete this assessment without the student's thinking? Which Bloom's level does it assess? How could you modify it so student must analyze, evaluate, or create rather than simply reproduce information? Reproduce से बचना है. So आज का मैसेज इसके लिए, हमारी केस स्टडी के लिए, in the information age student needed to know information. ये information age नहीं है, ये AI age है. Student need to know how to think about information. So Bloom's taxonomy provides the roadmap for developing those thinking skills. So ये Bloom taxonomy है जो हमें AI के साथ मुकाबला करने की अहलियत देती है, जो हमारे जहन के अंदर कुछ सवालात पैदा करती है जो हम AI को करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग जो है वो होती है. तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है? फ्रेमवर्क था जो कि 1956 में ये डेवलप किया गया. बेसिकली L&D प्रोफेशनल्स यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और एजुकेटर स्ट्रक्चर लर्निंग टुडे, ये आज यही शेप कर रही है एजुकेशनल स्ट्रक्चर लर्निंग जो है वो आज. ये डिस्कस करती है 6 कॉग्निटिव लेवल. कॉग्निटिव मीन हमारे ज़हन का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे करता है, उसको कॉग्निटिव लेवल हम कहते हैं. और इसके 3 डोमेन है.
याद रखिए कि इसके लेवल्स कितने हैं, 6 है, और इसके 3 डोमेन्स है। डोमेन्स क्या होते हैं उसको भी, वैसे मैंने इस डोमेन्स के ऊपर जब हमने इंग्लिश की अपनी बुक्स में ये किया था 21st सेंचुरी स्किल, तो उस वक्त मैंने इसका जिक्र किया था। द एक्शन वर्ब दैट मेक्स ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल, यानी वो एक्शन वर्ब्स के जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को मेजरेबल करते हैं, कि बच्चे के जान सकते हैं कि उसने क्या स्किल्स सीखी हैं, एंड हाउ टू अप्लाई द टेक्सोनॉमी इन प्रैक्टिस, एक्चुअली इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। द डिस्कशन विल हेल्प यू लर्न व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी, ओरिजिनल वर्सेस रिवाइज्ड, यानी 56 में एक ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी जो थी वो आई थी, उसके बाद ये रिवाइज हुई 2001 में, राइट। और उसमें 6 लेवल्स ब्लूम टेक्सोनॉमी वर्ब। पहले जो थे, जैसे कि अभी आप देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो था वो, फॉर एग्जांपल नॉलेज था जो कि एक नाउन है, लेकिन अब जो 2001 में रिवाइज की गई, अब उसमें नाउन नहीं है बल्कि वर्ब है। वर्ब का मतलब ये होता है कि वो उसको एक्शन में लाता है किसी चीज को। 3 डोमेन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और 3 लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखते हैं, और व्हाई इट मैटर्स इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग में क्यों मैटर करते हैं, और व्हाट्स ब्लूम टेक्सोनॉमी एग्जैक्टली। सो ऑर्गेनाइज इनटू levels that move from basic recall to complex creation. The core idea is learning is a progression. Learning जो है वो एक progression है, उसके different steps हैं, और उन steps में वो आगे बढ़ती है। Apply what you don't understand. आप किसी भी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप उसको अच्छी तरह नहीं समझते। यू कांट एनालाइज व्हाट यू हैवंट लर्न टू अप्लाई फर्स्ट, और ना आप किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं जिसको आपने अप्लाई करना सीखा ही नहीं है। आप देखिए एक बच्चा खिलौने को तोड़ देता है तो वो एनालाइज कर रहा होता है, अब जोड़े तो सिंथेसाइज कर देता है। यही असल में जो बच्चे के पास ये बच्चों को और इंसान को उसके लर्निंग प्रोसेस को देख के ये साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने और उसके कॉलीग्स ने इसको 1957 में 56 में इसको डेवलप किया था। Originally designed to give university professor a shared vocabulary for talking about assessment goals। यानी असेसमेंट गोल्स क्या है, असेसमेंट से मतलब जो आपने एग्जाम लेना है उसका गोल क्या है, कि बच्चा किसी चीज को अप्लाई, किसी भी बात को की एप्लीकेशन कैसे कर सकता है, उसको एनालाइज कैसे कर सकता है, उसको मुख्तलिफ 2 चीजों को लेकर सिंथेसाइज कैसे कर सकता है। It has since become the standard reference for instructional design across schools, universities, corporate training programs worldwide. यानी जहां भी लर्निंग की बात होती है तो ब्लूम टेक्सोनॉमी इज देयर। In the context of learning and development, Bloom taxonomy gives L&D, learning and development teams, a practical tool for aligning what they teach to what the job actually demands. यानी कोई भी जॉब एक्चुअली क्या डिमांड करती है उसके लिए वो क्या टीच करेंगे। द pyramid below shows the revised version used today। अब ये देखें, ये दो 56 में और रिवाइज्ड 2001 में। अब 56 में जब आया तो ये एक पिरामिड था, नॉलेज पहले पे था, कॉम्प्रिहेंशन दूसरे, एप्लीकेशन तीसरे पे, एनालिसिस चौथे पे, सिंथेसिस पांचवे पे, और एवेल्युएशन छठे पे। अब ये 6 लेवल्स हैं, 6 टीयर्स हैं। अब देखेंगे सारे नाउन हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, राइट। रिवाइज जब किया गया तो रिमेंबर याद रखना, अंडरस्टैंड समझना, अप्लाई करना, एनालाइज, मूव टू टॉप, एवेल्युएट, स्वॉप, क्रिएट। अब जो सिंथेसिस था इसको टॉप पे ले गए, और उसको क्रिएट के टॉप, जो टॉप था उसको क्रिएट के साथ जो था वो हमने इसको कर दिया, ठीक है।
अब इसको देखें, अब ये वो वर्ब थे, यानी मेंबर जो आ गया, तो उसमें अब आप पेपर बनाते वक्त आमतौर पे हम कहते हैं डिफाइंड, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट। अब ये वो बेशुमार पेपर्स में आपको पता है, आपने पेपर दिए हैं, आपने पेपर बनाए हैं, कि आप इसी लेवल पे रहते हैं। अंडरस्टैंड में जब जाते हैं तो क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकग्नाइज, रिपोर्ट, सेलेक्ट, ट्रांसलेट। ये ऑब्वियसली आप इसी वक्त सुनते और देखते हुए कह सकते हैं कि ये रिमेंबर से ऊपर वाली चीज है, इसके लिए डिफाइन से ऊपर लर्न करना पड़ेगा। अप्लाई में जब आते हैं तो execute, implement, solve, use, demonstrate, interpret, operate, schedule, sketch, ये उससे अगली है, अप्लाई आ गया। एनालिसिस, डिफ्रेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट। अब दो चीजों को आप रिलेट कर रहे हैं तो एनालिसिस हो रहा है। कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट। अब ये सारे एनालिसिस के लेवल आ गए। इवेल्युएट, अप्रेज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, क्रिटिक, वे। अब ये क्रिटिक देखें किस लेवल की बात आ रही। और क्रिएट, प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल वर्क, डिजाइन, assemble, contrast, conjecture, develop, formulate, author, investigate। अब इस एक पिरामिड को देख के ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि why learning Bloom taxonomy is important and why you as teacher must come to the from lower level to the टॉप लेवल। क्योंकि हमने अगर क्रिएट को नहीं, अभी हमारे जो बोर्ड की एवेल्युएशन करती है, अनफॉर्चुनेटली उसमें ये जो वो अप्लाई तक ही हम जाते हैं, ऊपर अब अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक असल जो है वो हायर ऑर्डर 3 जो लेवल्स हैं, एनालिसिस, एवेल्युएट एंड क्रिएट, उस तक अब हमें ये कुछ कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अभी हम वो आता है जी कि ये रिमेंबर पार्ट है, ये अंडरस्टैंड पार्ट है, ये अप्लाई पार्ट है, लेकिन एनालिसिस, एवेल्युएट और क्रिएट में अभी तक नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं वो 2000 में जो हमने की थी। द रिसर्च ग्रुप बाय डेविड क्रैथवॉल, वन ऑफ द ओरिजिनल ऑथर्स, जो कि बेंजामिन ब्लूमफील्ड में था, और लॉरेन एडरसन, मेड 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस। उन्होंने क्या किया कि नाउन बिकेम एक्शन वर्ब, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। नॉलेज बिकम्स रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन बिकम्स अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से सारे जो चीजें ये आपने अभी जो देखा। The top level were swapped, evaluation moved to 5 as synthesis renamed create। क्योंकि जब आप सिंथेसिस करते हैं तो एक होता है थीसिस, एक होता है एंटी थीसिस, और एक उसके नतीजे में निकलता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जो होता है वो थीसिस, एंटी थीसिस और उसके मिलाप से सिंथेसिस वाक्य होता है। तो इसका मतलब ये होता है इट्स अ न्यू थिंग ना, यानी किसी बात को आपने लिया, उसकी मुखालफत में बात की, और फिर उसके नतीजे में कोई एक कंक्लूजन हुआ जो कि पिछली 2 चीजों से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, द रीजनिंग प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल रिक्वायर्स एवेल्युएटिंग, जजमेंट, मेकिंग, क्रिएशन टू मोर cognitively complex tasks. 2001 revision is what most practitioners use. Sorry. When you see Bloom taxonomy referenced in instructional design, corporate training, or curriculum design today, it is almost always the revised version. यानी आज रिवाइज वर्जन जो 2001 का है, जिसमें नाउन को वर्ब से चेंज कर दिया और जिसमें 6 और 7 को स्वैप कर दिया, वो ही इस्तेमाल होता है, राइट? So each level builds on remember, foundation, and learner recalls fact, definition, procedure, and concepts from memory without needing to interpret or use them yet. और क्वेश्चन कैसे होते हैं? What is, list the steps, when did, who was responsible for.
ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप बनाते हैं। इसी तरह अंडरस्टैंड, learners can explain ideas in their own words, not just repeat them. They can summarize, interpret, classify, and give example without prompting. अब इन क्वेश्चन कैसे होते हैं? How would you explain? What is the main idea of? Can you give an example of? What do you understand by? ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखें तो इसका मतलब ये है, ये अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं। Apply using knowledge in a new but related context. This is where training moves from theory to practice. The task is familiar enough to recognize but requires execution, not just recall. यानी किसी काम को करना इसके अंदर ना हो तो फिर चीजों को रिकॉल करना नहीं है। Question: how would you use? What would happen if you applied this to? Can you demonstrate? तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में बनेंगे। Analysis: breaking down information to understand the components and the relationship between them. Learner examine, compare and draw conclusion. They don't just use information, they interrogate it. So question क्या आएंगे? What are the components of? How does X compare to? What evidence support? What conclusion can you draw from? So ये question आएंगे। अब training evaluation form, get a handy printable form to evaluate training and course experience. Evaluate, making judgment based on criteria. This requires both knowledge and a position. Learners do not just describe, they assess and defend. Which approach is more effective and why? How would you defend? What criteria would you use to judge? Is this the best solution? So इस तरह के थिंकिंग करने वाले, हायर थिंकिंग ऑर्डर पर यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्रिएट, ये 6 लेवल है। प्रोड्यूस समथिंग न्यू, द मोस्ट कॉग्निटिवली डिमांडिंग लेवल। इट रिक्वायर्स synthesizing knowledge, applying judgment and generating a original output that did not exist before. यानी ये वो जवाब है कि जो पहले वजूद में नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली एक सिंथेसिस है जिसके नतीजे में क्रिएशन होता है, तो इसलिए उन्होंने नाम ही क्रिएशन रख लिया। सो क्वेश्चन स्टेम, हाउ वुड यू डिजाइन, हाउ वुड यू प्रपोज, इफ कैन यू कंस्ट्रक्ट समथिंग दैट, व्हाट सॉल्यूशन वुड यू रिकमेंड। सो ये वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के वो सारे वर्ब आ गए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे बार में आप देख सकते हैं कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन सी है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कौन सी है? एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। और ये इनके वर्ब्स हैं। ये वो वर्ब्स हैं जो कि आप लोग अपने होमवर्क में, अपनी असेसमेंट जो बच्चों को देते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 3 डोमेन जो है वो है, यानी 3 डोमेन जो है वो फ्रेमवर्क most people learn first, but the original work covered 3 separate domains of learning. Understanding all 3 domains for instructional designer and LD teams build complete training program. The cognitive domain, the most widely known domain, it covers thinking skills, knowledge, comprehension, and intellectual ability to analyze, evaluate, and create. यानी इन तमाम में ये जो जिस निकलता है वो ये है कि ये 3 चीजें इससे हासिल होती हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन जो आपकी कॉग्निटिव, आपकी सोचने समझने की सलाहियत है, ठीक है। ये सारे 6 लेवल डिस्क्राइब above. The affective domain covers attitude, values, and emotional response to learning. It was developed by Krathwohl, Bloom, and Massier in 1964 with 5 levels that describe how learner internalize, adopt new values. जब आपने एक चीज को लर्न कर लिया, इंफॉर्मेशन को, और आप में ये उसको एनालाइज करने की, एवेल्युएट और क्रिएट करने की सलाहियत होगी, तो उसके नतीजे में आपके रवैये में क्या तब्दीली पैदा हुई, आपने किन वैल्यूज को अडॉप्ट किया, आपके अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो थे
वो उस लर्निंग के नतीजे में क्या हो गया, तो ये अफेक्टिव डोमेन्स जो है वो होती है। और तीसरी जो है वो साइकोमोटर डोमेन है, यानी वो चीज जो आपके फिजिकल स्किल्स के अंदर और कोऑर्डिनेशन में आ जाती है। इट मोस्ट रेलेवेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, ओनली कॉन्टेक्स्ट वेयर learning requires performing a physical task correctly, not just understanding how to। ये उसके आगे की है, जब आपका लर्नर जो है वो प्रैक्टिकली वर्क फोर्स में शामिल हो जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये तमाम चीजों का अहाता करती है। तो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब स्किल डोमिनेंट डेवलपमेंट इन स्टेजेस फ्रॉम ऑब्जर्विंग एंड imitating a procedure to performing it automatically with precision under variable conditions. Why all three domains matter? A training program that targets the cognitive domain only teaches people what to do. It does not build the attitude to do it consistently effective, or the physical skill to do it correctly under the condition psychomotor, right? तो ये तमाम चीजें जो है, अगर हमारी तालीम एजुकेशन जो है वो बच्चों के अंदर एक रवैया पैदा नहीं कर सकते कि जो उनके पूरे जो नॉन वर्बल स्क्यूज हैं उसके नतीजे में उनके स्किल में, यानी अगर वो गाड़ी नहीं चला सके तो जितना मर्जी उनको इल्म दे दें, किताबें बढ़ा दें कि गाड़ी ऐसे चलती है, दिस वोंट हैपन। तो complete instructional design map learning object across all three areas. So higher order thinking versus lower order thinking। अब इसमें देखें, ये अभी हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग, लोअर ऑर्डर थिंकिंग वर्किंग विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, रिकॉलिंग, एक्सप्लेनिंग एंड यूजिंग व्हाट हैज बीन लर्न। जबकि हायर ऑर्डर थिंकिंग डूइंग समथिंग विद नॉलेज, questioning it, judging it and building from it। This is the difference between higher and lots and hots। So connect Bloom taxonomy with standards। आपको याद है what should student learn? Benchmark, how the standard should be measurable outcomes, what shouldn't know and be able to, और obviously assessment इसकी final है। So curriculum के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और करिकुलम डेवलपर जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जरा देख लें। अब many curricula focus excessively on memorization। Effective curricula develop knowledge, understanding, application, critical thinking, creativity। Example, अब टॉपिक है water conservation। Remember है define water conservation। Understanding है explain why water conservation is important। Apply है demonstrate method to save water at home। Analysis है compare water usage pattern in urban and rural areas। Evaluate है assess the effectiveness of a conversation complaint। अब ये देखेंगे आप इस एक चीज से आप कैसे कितना कुछ अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। अगर आपका टेक्सोनॉमी का नॉलेज जो है वो सही हो तो आप कोई भी असाइनमेंट दे तो उसको किस हद तक ले जा सकते हैं। और क्रिएट डिजाइन स्कूल वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट डिजाइन करना है ये पूरे प्रोसेस से होकर निकलना, तो ये एक अल्टीमेट गोल है जो क्रिएट करना है, इसलिए उसने सिंथेसिस को क्रिएशन कर दिया। तो अगर मैथमेटिक्स में हो, सब्जेक्ट वाइज हमारे पास मैथ है, तो रिमेंबर क्या हो जाएगा, डिफाइन ए प्राइम नंबर, अंडरस्टैंड एक्सप्लेन व्हाई फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, अप्लाई कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ क्लासरूम, analysis compare two method of solving the same question, evaluate decide which method is more efficient and explain why, create design a word problem involving simultaneous equations। ये अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो आपका रिमेंबर से क्रिएट तक का सफर ये है।
अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो रिमेंबर स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, understand, explain why objects fall to the ground, apply, predict what will happen if friction is removed, analyze, compare renewable and non-renewable energy sources, evaluate, recommend the best energy source for Pakistan with reason, or create, design a model of an eco-friendly house. आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आपका सफर रिमेंबर से क्रिएट तक का इस तरह हो रहा है। इंग्लिश, define metaphor, understand, summarize the main idea of the passage, apply, use 5 new vocabulary words in sentences, analyze, identify the author's purpose in an article, evaluate, critique the effectiveness of the author's argument, create, write a persuasive essay on environmental protection. So, yeah, इस तरह से सफर है अंग्रेजी के टीचर्स का रिमेंबर्स से क्रिएट का कि राइट ए पर्सुएसिव एसे ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये तमाम चीजें कहने को बड़ी यानी एग्रामिक है, लेकिन यह है कि अगर आप इनको सही तरह करेंगे तो ये आपके पूरे प्रोसेस के अंदर आपके जो लर्निंग प्रोसेस है, आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, अगर आपने 3 डोमेन्स और आपने 6 लेवल्स जो हैं वो सीख लिए, अब आइंदा जब भी पेपर आपके पास आएगा तो आप जिन्होंने खुले जहन के साथ मेरी बातों को सुना है वो ये जरूर कहेंगे कि ये सवाल जो है ये फर्स्ट लेवल का है, ये सेकेंड लेवल का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है और ये 6 का है। और जब वो खुद कोई बात करने लगेंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने लॉर्ड फर्स्ट 3 लेवल को करना है या हॉट सेकेंड 3 लेवल्स को करना है। ऑब्वियसली फर्स्ट 3 लेवल्स आर नॉट अनइम्पॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन का कैसे क्या होती है उसका नॉलेज बहुत जरूरी है, उसको आपके जहन को, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल जो है कि आपके पास जो इल्म है उस इल्म के नतीजे में कोई ना कोई क्रिएशन, कोई नई बात जो है वो पैदा हो, और नई बात पैदा होने के नतीजे में सारा प्रोसेस जो है ये है। तो आई होप कि आज इससे आपको बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। इसकी करिकुलम इम्प्लीकेशन क्या है? करिकुलम डेवलपर शुड इंश्योर लर्निंग आउटकम्स रिप्रेजेंट मल्टीपल कॉग्निटिव लेवल्स, यानी हम जब किसी चीज को लर्न करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं, कहीं रिमेंबर, कहीं एनालिसिस, कहीं अंडरस्टैंड, कहीं क्रिएट एटसेट्रा। टेक्स्ट बुक इंक्लूड हायर ऑर्डर थिंकिंग एक्टिविटीज। टेक्स्ट बुक में हायर ऑर्डर थिंकिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, अब आप जान सकते हैं कौन कौन सी। असेसमेंट मेजर्स मोर देन रिकॉल। असेसमेंट जो होती है वो रिकॉल से, ऑब्वियसली ये रिकॉल्स जरूर होता है लेकिन वो क्रिएट की तरफ भी ले जाती है। तो ये वो इम्प्लीकेशन ऑफ द करिकुलम है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये वो वही चीजें हैं जो हमने अभी की हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसकी मिसालें हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, तो आप इस स्लाइड को अपने सामने रख के आप इसको देख सकते हैं कि कैसे रिमेंबर से क्रिएट तक हम जाते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, जिसकी मैंने अलग अलग से मिसालें जो हैं वो दी हैं। तो मेरी दुआ है कि आप लोग जो हैं वो ये तमाम काम जो हम कर रहे हैं इसको लर्न करें, इसको सीखें और अपने टीचिंग में इनको इस्तेमाल करें। अपने फीडबैक से हमें, पॉजिटिव फीडबैक से ज़रूर हमें मतलब किया कीजिए। आई होप कि इंशाल्लाह ताला आपने आज के इस डिस्कशन से कई चीज़ें जो है वो लर्न की होंगी। जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं खुद भी लर्न कर रहा होता हूँ और साथ साथ मैं अगले प्रोग्राम्स के बारे में भी सोच रहा होता हूँ। सो अंटिल नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।